Hello students, hopefully you all are fine. Students, as we know that लॉकडाउन के कारण हमारी सारी क्लासेस अब ऑनलाइन ही चलेंगी, right? Firstly, I'm introducing myself. I'm Meenakshi and I'll teach you biology. Now the first question that comes in the mind is what is biology, right? What is biology? Students, bios means life, and logos means to discourse or to study. So now it's quite clear that it's a science. It's a natural science that studies the living organisms. So, biology, it's a natural science that studies life or living organisms. Clear? Now, as we know that life occurs almost everywhere on earth, from the driest desert to the icy polar waters. हर जगह पे माउंटेन पीक्स हों या फिर डीपेस्ट ओशन ट्रेंचेस हों, हर जगह लाइफ है. और सम ऑफ दीज लाइफ आर एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक, दे आर सिंगल सेल्ड एंड सम आर मैनी सेल्ड. So biologists are the one that have identified them, and they have identified numerous of the species. Clear? See, biology that include two branches. Biology include two branches. So the branches of biology are basically zoology and one is botany. See students, zoon means animals, and again logos means to study. So it's a study of animals. So zoology or zoology, it's a study of animals. And you know Aristotle is the father of zoology and even the father of science. Is a father of zoology, biology, complete. Right? And botany, the Greek word botany comes from botany, means plants. So it's basically the study of plants. And you know Theophrastus is called the father of botany, right? And the scientist Bohin is called the father of modern botany. Is a father of modern botany. Clear? So basically biology is the science which studies living organisms, what they are, how they work, how they interact, how they have formed, how they have evolved. So it is basically the science that deals with the living organisms, right? And biologists were used to concentrate either on the study of plant life or on the animal life. So basically the two main branches, botany and zoology. Clear? So now students, we are starting our first chapter, but not we are dealing with the first chapter. Actually, we are starting with chapter number 2, and that's chapter number 2 name is biological classification. Students, yes, we are starting our chapter number 2, that is biological classification, right? So let's start studying. Hopefully you understand this, what is biology, its branches, what it deals with. Right? The father of biology is Aristotle, but the father of botany is Theophrastus. So students, let's start.
Let's start with the chapter number 2, that is biological classification. Students, before studying this chapter, let me clear you one thing. What is biological classification? See, biological classification is a scientific procedure. एक साइंटिफिक प्रोसीजर जिसके थ्रू हमने ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर लिया, किस में, ग्रुप्स में या फिर सब ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, और फिर हमने उसको ग्रुप्स में प्लेस कर लिया इन द हायरार्की ऑफ कैटेगरीज. देखो, ये टोटली ऐसी लैंग्वेज थी जो शायद आपको ना समझ में आई हो. ध्यान से एक बात सुनते हैं पहले. स्टूडेंट्स, हमें पता है इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, तो अगर मुझे उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना पड़े तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. सो देयर इज़ वेरी डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, राइट. तो अगर कुछ ऐसा हो कि मेरे पास ग्रुप्स बने हों और उस ग्रुप के एक मेंबर को स्टडी करके मुझे पूरे ग्रुप की नॉलेज मिल जाए तो इट विल बी ईजी, राइट. सपोज़ करो अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स हों, राइट, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ +1 क्लास. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, मुझे नहीं पता वो स्टूडेंट्स किस स्ट्रीम के हैं. तो मैंने बोला स्टूडेंट्स आप ऑर्गेनाइज हो जाओ, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप एक हो जाए और साइंस ग्रुप एक हो जाए. तो स्टूडेंट्स डिवाइड हो गए, ह्यूमैनिटीज़ वाले एक साइड पे हो गए और साइंस वाले एक साइड पे हो गए. और फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा साइंस वालों में से जिसके पास बायोलॉजी है तो वो अलग हो जाएं, तो वो अलग हो गए. नाउ सी, सभी पहले एक ग्रुप में, दैट इज़ +1, फिर उनके ग्रुप्स हो गए. किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़. जिसके पास ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप था वो अलग हो गया, जिसके पास साइंस ग्रुप था वो अलग हो गया. फिर उसके बाद देखो, जिसके पास बायो है वो अलग हो गए और मैथ्स है वो अलग हो गए, राइट. सी, तो जिसके पास करैक्टरिस्टिक्स जो मिलते थे उसके बेसिस पे वो अलग हो गए. तो सी, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग. सो हम बात करें, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसीजर, राइट, ऑफ अरेंजिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड dissimilarities and place them in the hierarchy of categories. तो हमने उनको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ में हमने उसको डाल देना. सो इफ आई विल से कि दिस कम्स अंडर किंगडम एनिमेलिया, तो हमारे माइंड में पिक्चर आ जाएगी कि दैट शो लोकोमोशन, दैट आर हैविंग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, राइट. सो वी आर डीलिंग इन दिस चैप्टर दैट बायोलॉजिकल classification. So now, why there is a need for biological classification? हमें नीड क्यों पड़ी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इतने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटिस्ट हैं, प्रोटोजोन्स हैं, राइट. और इनका अगर हम नंबर देखें, दैट रेंजेस अप टू 1.7 to 1.8 million. So no one can easily study them, right? No one can be able to study each and every organism on this earth. So it will be easy if we organize them into groups. Clear? और कितने तो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए. They are not even yet discovered and identified. Right? So it is practically not possible to study each and every organism. So because we have to make study easy and convenient, so there must be a system, and that system makes us easy to study the animals, or we can say organisms on the earth. So the just possible way to study them is the classification. Clear, students? So if I say classification, it's a process by which anything is grouped into convenient categories. But remember, we have to classify them on the basis of their observable characters, जो हमें नज़र आ रहे हैं. जिसके कोई करेक्टर्स मिलते होंगे हम उनको एक ग्रुप में डालेंगे, जो करेक्टर्स डिसिमिलर होंगे हम उनको दूसरे ग्रुप में डाल देंगे. सो इस तरह से हम उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते जाएंगे, राइट. सो इज़ देयर एनी नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? येस. योर आंसर वुड बी येस. येस, देयर इज़ अ नीड. Why? Because it's not possible to study each and every organism separately. It is not possible to study each and every organism separately, right? So
आइडेंटिफिकेशन इज़ ओनली पॉसिबल इवन व्हेन वी हैव अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम किसी चीज़ को तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। अगर हमने क्लासीफाई कर रखा है ऑर्गेनिज्म को, लाइक सपोज वी नो दैट कि दिस इज़ अ एनिमल, तो हमें पता है उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो अगर मेरे पास एक नया ऑर्गेनिज्म, जस्ट मुझे एक नई स्पीशीज़ मिल रही हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मैं किस में डालूँ, वेदर आई हैव टू पुट इन अ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, और आई हैव टू पुट इन फंजाई और प्रोटिस्टा और मोनेरा, किस में डालूँ उसको, किस ग्रुप में डालूं? अगर मुझे उसके कुछ करेक्टर्स पहले से ही पता होंगे, राइट? मुझे पता होगा कि जो एनिमेलिया किंगडम है उसमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले आते हैं एंड दे शो लोकोमोशन एंड सो ऑन। सो आइडेंटिफिकेशन इवन इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ वी हैव अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट? एंड it is also helpful in knowing the relationship among the organisms। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप क्या है? तो जितना आपस में करेक्टर्स मिलते होंगे वो एक ग्रुप में होंगे, इट मीन्स दे आर क्लोजली रिलेटेड। जो दूसरे ग्रुप में होंगे, जिनकी क्लास अलग होएगी, जिनकी फाइलम अलग होएगी या जिनके किंगडम अलग होएगी, तो डेफिनेटली वो they are not much closely related as compared to the one which are found in one group, right? And even ये मैंने बात आपको पहले बता दी है, just study of one organism, study of just one organism gives the idea about the rest of the members of the particular group। तो मुझे एक मेंबर को स्टडी करके, एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के बाद मुझे पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो कैसा ग्रुप है। सो स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म गिव्स द आइडिया अबाउट द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, राइट? सो ऑब्वियसली देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। गॉट इट स्टूडेंट्स? Now the types of classification. Students, there are basically two types of classification, that is empirical classification and rational classification. Empirical classification में हम actually morphology तो पढ़ते ही नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन, what is morphology? Students, morphology means the study of external characters of organism। जब हम किसी के एक्सटर्नल करेक्टर्स पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं प्लांट की बात करूँ तो उसकी रूट कैसी है, उसके लीव्स कैसे हैं, उसके फ्लावर्स का कलर क्या है, फ्लावर्स की ग्रुपिज्म कैसी है, उसकी शूट सिस्टम कैसी है, उसका फ्रूट कैसे है। तो आई एम जस्ट स्टडिंग इट्स एक्सटर्नल फीचर्स, तो दैट इज़ आई एम स्टडिंग अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी। अगर मैं बात करूं उसकी रूट के अंदर सेल्स की इस तरह की शेप है और सेल्स का ये काम है, राइट? सेल्स की वॉल्स कैसी हैं, तो पहले कौन सी सेल की लेयर आई रूट में, फिर कौन सी लेयर आई। अगर मैं इन चीज़ों की डिस्कशन करूं तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एनाटमी। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? एनाटमी। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए नई टर्म्स हैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी। तो हम बात कर रहे थे एम्पेरिकल सिस्टम की, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो एम्पेरिकल सिस्टम में एक्चुअली मॉर्फोलॉजी को स्टडी नहीं किया जाता, तो फिर क्या करा जाता है? इसमें क्या करा जाता है, जिस प्लांट या जिस ऑर्गेनिज्म या जिस एनिमल का नाम जिस लेटर से शुरू होता है, सपोज करो एक एनिमल का नाम ए से शुरू होता है, एक और एनिमल है उसका नाम भी ए से शुरू होता है, ऐसे हमारे पास सपोज काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, तो हमने सबको एक ग्रुप में डाल दिया जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकली। बस सिर्फ हमने उनको कैसे करा है, अल्फ़ाबेटिकली डाला है। तो जितने भी एम से प्लांट शुरू होंगे या एन से होंगे या ओ से होंगे या पी से होंगे, उनको हमने ग्रुप कर लिया जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्फ़ाबेट्स ओनली। सी, रेडिश है, रोज़ है, तो हमने आर से देखा और उसको एक में डाल दिया। तो इसका क्लासिफिकेशन में एक्चुअली कोई यूज़ नहीं था। तो इसका यूज़ किस में था फिर? जस्ट इन द लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा, इन द लिस्टिंग ऑफ
फ्लोरा में इसका क्या था, यूज़ था। अब इसका मतलब क्या है इन द लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा? इसका मतलब है बेटा, फ्लोरा एक बुक होती है जिसमें हमें प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन दी होती है, प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन दी होती है। तो उसमें क्या होता है, तो अल्फ़ाबेटिकली डिस्क्रिप्शन दी होती है। जैसे बी वाले प्लांट्स सारे एक ही जगह पे मिल जाएंगे आपको, डी वाले एंड सो ऑन अल्फ़ाबेटिकली। तो इट विल बी ईजी टू फाइंड आउट। अगर मुझे पता होगा मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है, तो मुझे पता है मुझे एम वाले साइड से उसको ढूंढना है। सो इसका वैसे क्लासिफिकेशन में कोई रोल नहीं था, क्योंकि ये तो ना तो मॉर्फोलॉजी स्टडी करता है, इसने सिर्फ कैसे अरेंज करा है ऑर्गेनिजम्स को, ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट अल्फ़ाबेटिकली। तो इसका यूज़ किस में आ गया, जस्ट द लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा, बस। एंड रैशनल क्लासिफिकेशन, इसमें हम एक्चुअल नेचर हम देखेंगे कि प्लांट की नेचर क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका हैबिट क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। अब आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी। येस, इट्स अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करके ही बता पाएंगे कि उसको किस ग्रुप में डालना है हमें। तो सपोज़ अगर कुछ प्लांट्स के लीव्स की स्ट्रक्चर मिलती है आपस में, तो वी कैन प्लेस देम इन वन ग्रुप। क्लियर? तो इसमें एक्चुअली नेचर, उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करा जाएगा। तो इसमें आते हैं हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। एक आएगा इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक आएगा इसमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और एक आएगा इसमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, we are not dealing up in this video, we will deal these topics in our next video, right? So अभी हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। स्टूडेंट्स, आज हमने what is biology ये जाना कि बायोलॉजी जो है दैट्स अ नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। और उसकी ब्रांचेस बॉटनी एंड जोलॉजी के बारे में हमने जाना। फादर कौन है बायोलॉजी का, जोलॉजी का फादर कौन है, दैट्स एरिस्टोटल, and the father of botany is Theophrastus, whereas a father of modern botany he is Bohin, right। फिर हमने स्टार्ट करा अपना चैप्टर 2, हमारी NCERT का चैप्टर 2, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने जाना व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये होता क्या है, हमें नीड क्या है इसकी, राइट। हम क्यों कर रहे हैं क्लासीफाई, और हमारे पास कितनी टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। और रैशनल क्लासिफिकेशन के टाइप्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इस वीडियो में हमारे पास बहुत सारे डायग्राम्स नहीं थी, कुछ डायग्राम्स नहीं थी बनाने के लिए, तो हैव रिटन द कंटेंट फर्स्ट। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में जिसमें डायग्राम्स होंगी, सो ट्राई करो आप भी डायग्राम उसके साथ साथ ही ड्रॉ करना, तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड मच, राइट। टिल देन, नाउ stay indoors and stay safe. Bye bye.